أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میم آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے. 15 دن بعد الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ 15 دن بعد مل رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مدت ہو گئی. یہ ہے اہل القرآن کی آپس میں محبت. کلاس شروع کرتے ہیں آج اپنی 18th کلاس اپنی گرامر کی. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ آج کل مرکب ناقص کر رہے ہیں. ہم نے گروپ میں میسج بھیجا تھا 4 اسکرین شاٹس کہ اس میں ہم نیچے سے بلائیں گے. تو عیشا، ازاج، مہوش، ہیرا، افضل، طوبہ یہ لوگ تیار ہیں. جیسے ہی نام بلاؤں تو پلیز جلدی سے مائک آن کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم لوگ آج کا لیسن کمپلیٹ کر لے جائیں. تو ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب ناقص. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مرکب ناقص ہمارے سلیبس میں 5 ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب اضافی اور مرکب عطفی. اور آج ہم لوگ کریں گے آپ مرکب توصیفی اور مرکب اشاری آپ لوگ کر چکے اور امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اگر اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ہو تو ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے میسج کر کے. آگے چلتے ہیں اور آج کرتے ہیں مرکب جاری. ہم لوگوں نے اعراب کر لیے ہیں. وہاں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جاری ورڈ کچھ اعرابی حالت سے کچھ یہاں پہ، اور بالکل صحیح آپ سمجھ رہی ہیں. مرکب جاری 2 حروف سے مل کر بنتا ہے. اب تک جو آپ نے دونوں مرکب کیے، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری، اس میں دونوں ہی جو اس کے جز تھے وہ اسم تھے. موصوف بھی اسم تھا اور صفت بھی اسم تھی. اسی طرح مرکب اشاری میں اسم اشارہ بھی اسم تھا اور مشار الیہ بھی اسم تھا. لیکن اب جو مرکب آپ کر رہے ہیں پہلا حرف ہے اور دوسرا اسم ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ حرف جر اور اسم مجرور، مطلب یہ حرف جر اور اسم مجرور کا مجموعہ مرکب جاری کہلاتا ہے. یا دوسرے لفظ میں مرکب جاری کے 2 اجزاء ہیں، 2 پارٹس ہیں: حرف جر اور اس کے آگے آنے والا اسم جو کہ حالت مجرور میں ہوگا، اس لیے اسے کہتے ہیں اسم مجرور. اور ان دونوں کو ایک ساتھ کہتے ہیں جار مجرور. ان کا کمبائنڈ نیم کیا ہے؟ جار مجرور. حرف جر تھوڑا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سلیبس میں فرسٹ ٹرم میں ہم لوگ اسم کریں گے اور سیکنڈ ٹرم میں فیل کریں گے اور تھرڈ ٹرم میں بھی فیل کریں گے. تو حرف کب پڑھیں گے؟ سوال یہ ہے. حرف ہم الگ سے نہیں پڑھیں گے. جب بھی ہم، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حرف جو ہے اسم یا فعل کے ساتھ ہی آتے ہیں اور تبھی اپنا معنی بھی دیتے ہیں. تو جب بھی ہم کوئی مرکب کریں گے یا کوئی دوسری چیز کریں گے جس میں کوئی حرف انوالو ہوگا، اسی وقت اس حرف کو ڈیٹیل سے کریں گے. اور جب اس طرح سے ہم موسٹ آف دا حروف کور کر لیں گے، جب پھر ہم 1-2 کلاس میں ایک ساتھ سارے حروف بھی کریں گے. لیکن فی الحال جب تک ہماری یہ تھرڈ ٹرم کی فیل کی کلاس چلے گی تو جب فیل کے اوپر، فیل کے ساتھ کوئی حرف آ رہے ہوں گے، اس کے اوپر اثر کر رہے ہوں گے، اس وقت ہم اس کو لے لیں گے. اور آج جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ مرکب جاری میں ہمیں حرف جر پڑھنا پڑا، تو اب ہم حرف جر کو آج ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اب آپ اوپر دیکھ رہی ہیں کہ عاملہ اور غیر عاملہ حروف کی 2 کیٹیگری ہے. عاملہ مطلب جو اپنے آنے والے اسم یا فعل کے اعراب کو چینج کر دے، تبدیل کر دے، تو ایسے حروف کو حروف عاملہ کہتے ہیں. ایک بار پھر، وہ حروف جن کے بعد اگر کوئی اسم یا فعل آئے تو یہ حروف ان کے اعراب کو چینج کر دے، ان کی شکل تبدیل کر دے، ایسے حروف کو حروف عاملہ کہتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ، یعنی نام سے ہی پتہ چل رہا حروف غیر عاملہ،
ایسے حروف جو اپنے آگے آنے والے اسم کی اعرابی حالت کو چینج نہ کرے، اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہ لائیں، اسم یا فعل جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہیں، تو ان کو ایسے حروف کو کہتے ہیں غیر عاملہ۔ آج جو آپ حرف پڑھ رہے ہیں حرف جر، وہ ہے عاملہ۔ ایک بات پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس وقت آپ بالکل بھی کچھ لکھیں گی نہیں، کوئی نوٹس نہیں بنائیں گی، کچھ بھی لکھیں گی نہیں۔ اگر کچھ لکھنا ہوگا تو میں آپ سے کہوں گی تو آپ وہی لکھیں گی۔ پوری توجہ سے اسکرین دیکھیں اور کوئی نوٹس نہ بنائیں۔ اس پی ڈی ایف کو دیکھ کے آپ ویکینڈ میں نوٹس بنا لیجیے گا انشاءاللہ۔ تو حرف جر عاملہ کی کیٹیگری میں ہے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے آگے آنے والے لفظ پر اثر انداز ہوں گے، اس کی حالت کو تبدیل کریں گے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ حرف جر is always followed by اسم، مطلب حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا۔ ابھی تک آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ ہم کہہ رہے ہیں اپنے آگے آنے والے اسم پر، فعل پر، کچھ حرف اسم پر اثر ڈالتے ہیں، کچھ فعل پر، لیکن حرف جر یہ ہمیشہ اسم کے ساتھ آئے گا۔ تو آپ کا جو مرکب جاری ہوگا وہ ہوگا حرف جر پلس اسم۔ آپ یہاں پہ مطلب فعل کبھی بھی نہیں آ سکتا اس کے ساتھ۔ اور اس طرح سے جو ہمارا مرکب بنے گا، ان دونوں لفظوں کا جو مجموعہ بنے گا اس بن جائے گا جار مجرور، اور اس کو کہیں گے مرکب جاری۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف جر ہی ہے۔ کسی اسم کے جر میں ہونے کی صرف 2 وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں آج کی کلاس میں، اور اگر آج کی کلاس انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو گئی تو نیکسٹ کلاس میں اگلی وجہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ کوئی اسم کیوں جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اس کی تعداد، ٹوٹل تعداد اس کی 13,000 ہے۔ 13,000 الفاظ جو ہیں وہ حرف جر ہی ہیں۔ اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حرف جر کتنے ہیں۔ تو بہت غور سے، بہت اچھی طرح سمجھیے۔ اس کے بعد مستقل جب آپ اپنی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گی تو آپ کا یہ ٹاپک خود ریوائز ہوتا جائے گا، اور آپ کو جب کسی چیز کو ہم پہچانتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، تو پھر وہ انجوائمنٹ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حروف جر کی کل تعداد، ٹوٹل تعداد 17 ہے، جس کو کہ کہتے ہیں عربی لغت میں ٹوٹل حرف جر 17 ہے، جس سے قرآن میں صرف 11 آئے ہیں۔ تو ہم جانیں گے تو 17 کا نام تو دیکھ لیں گے پورے 17 کو، لیکن تفصیل سے صرف 11 کو ہی پڑھیں گے۔ اس سلائیڈ میں پھر ایک بار بتایا، کیونکہ ابھی ہم حرف پہ چلے گئے تھے تو اب پھر سے آ رہے ہیں مرکب جاری پہ، کیونکہ کر رہے ہیں مرکب جاری۔ مرکب جاری کے 2 جز ہیں، حرف جار اور اسم مجرور۔ پہلے حرف جر آئے گا اور اس کے بعد آئے گا اسم مجرور۔ اب مرکب جاری کے 2 جو پارٹس ہیں وہ ہیں حرف جر اور اسم مجرور۔ پہلا حرف جر ہوگا اور دوسرا اسم ہوگا، جو کہ جر کی حالت میں ہوگا۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، اگر کوئی اسم رفع کی حالت میں ہوگا تو مرفوع ہوگا، کوئی نصب کی حالت میں ہوگا تو وہ منصوب ہوگا، اور کوئی جر کی حالت میں ہوگا تو وہ مجرور ہوگا۔ تو آج اسم مجرور جو ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا اس کی ضرورت بھی ہمیں پڑ گئی۔ تو اس طرح سے ہو گیا ہمارا جار مجرور مرکب جاری۔ حرف جر وہ حروف جو اپنے آگے آنے والے اسم کو، جب آپ اپنے نوٹس بنائیں گی تو اس میں یہاں پہ اسم کو انڈر لائن کر لیں گی۔ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہی آئے گا، تو اسم کو حالت جر میں لے جائیں گے۔ اور اس میں مجرور کیا ہوگا، جو دوسرا پارٹ ہے وہ کیا ہوگا، وہ اسم جو اپنے پہلے حرف جر کے آ جانے کی وجہ سے حالت جر میں چلا جائے تو وہ اس میں مجرور ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا ہو گیا مرکب جاری تیار۔ یہاں پہ دیکھیں، اگر یہ دونوں لفظ الگ الگ لیے جائیں، ابھی یہ دونوں مرکب نہیں بنے۔ واو، یہاں پہ یہ دیکھ رہی ہیں آپ کی واو ہے زبر کے ساتھ وا، اور القمرو تھا یہ چاند، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ مرکب بنا والقمری، تو یہ واو نے کیا کیا، قمرو را کی پیش کو زیر میں بدل دیا، اس کو حالت جر میں لے کے چلا گیا۔ آپ نے ساؤنڈ کی تھی نا، او آ ای، آئی مین ان ان ان، اور وہی جب ال کے ساتھ ساؤنڈ چینج ہوتی ہے ان ان ان، ہم نے یاد کیا تھا
اور جب ال لگ جاتا ہے تو تنوین ہٹ جاتی ہے, تو وہی ہماری ان کی ساؤنڈ بن جاتی او آ ای پہ, تو یہ حالت جر میں چلا گیا. تو والقمری اس میں واو یہ حرف جر ہے, اور القمری اس میں مجرور ہے. اور کوئی آپ سے پوچھے کہ والقمری کیا ہے تو آپ کہیں گی جار مجرور ہے. پھر اگر کوئی پوچھے یہ کیسا مرکب ہے تو آپ کہیں گی مرکب جاری. ایسے چھوٹے چھوٹے آنسر ہی بس عادت ڈالنے کی اس طرح سے بتا دیں. اب دیکھتے ہیں کہ حرف جر کی وہ جو 17 ہیں حرف جر وہ کون سے ہیں. یہ پورے 17 ہیں. یہ ان کو جو ہے ہمارے علماء نے ایک شعر میں اکٹھا کر دیا ہے. تو اس شعر کو اگر آپ یاد کر لیں تو عربی لغت کے ٹوٹل 17 حرف جر آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں بی تا کا لی فی من الا علا وا حتا ان, یہ 11 جو ہیں یہ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں, اور ہم انہی کو آج پڑھیں گے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم ان حرف جر کو کیسے یاد کریں گے. اس شعر کو یاد کر لیں گے اور بار بار پڑھیں گے, بار بار پڑھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تب تک پڑھیں گے جب تک یاد نہ ہو جائے. اس طرح باؤ تاؤ کافو لامو واو منذو مدخلا ربا حاشا من غدا فی عن علا حتا الا. اس کو پڑھتی رہیں, ایسا پڑھیں کہ آپ کو تو یاد ہو, آپ کے بچوں کو بھی یاد ہو جائے. تو اور یہ آپ کے ہوم ورک کا ایک پارٹ ہے, اس ہفتے کا ایک ہوم ورک یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ شعر تو میں اب نہیں کہوں گی, اب میں کہوں گی کہ یہ حرف جر کی یہ لسٹ جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے اس شعر کی فارم میں. باؤ از فار با, باؤ با کے لیے ہے, تاؤ تا, پھر کاف یہاں اوپر دیکھیں, پھر لام, پھر واو وا کے لیے, منذو اور مذ اور خلا یہ اسی طرح آتے ہیں عربک لغت میں. ربا بھی آتا ہے, حاشا بھی, پھر من. آپ جو ہائی لائٹڈ ہے دیکھیں جو قرآن میں آ رہے ہیں, الحمدللہ آپ لوگ 4 جز کر چکے, آپ ان سب سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. من آپ بہت کرتے ہیں, ادا یہ بھی عربی لغت میں ہے قرآن میں نہیں. فی عن علا حتا الا یہ سب قرآن کے ہیں. تو آپ جب یہ شعر یاد کریں گی تو اسی طرح سے اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے پورے شعر کو, اور پھر جس طرح ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اسی طرح ہائی لائٹ کر لیں گی کہ ہائی لائٹڈ جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے اور معلوم پورے ہی ہونے چاہیے. اب ایک ایک حرف جر دیکھیں, ہم نے جیسا کہ کہا تھا کہ جب بھی کسی مرکب میں ہمیں کسی حرف کی ضرورت پڑے گی تو اسی وقت ہم اس حرف کو ڈیٹیل سے کریں گے. تو اب ہم حرف جارہ کو ایک ایک حرف جر کو لیتے چلیں گے. جیسے سب سے پہلے آپ نے دیکھا بی ہے تو ہم نے بی کو لے لیا, اور اس کے بعد اس کو ڈفرینٹ مرکب کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو وہ بھی دکھے گا, حرف جر بھی دکھے گا, اور اس کے ساتھ اس میں مجرور بھی دکھے گا, اور اس طرح مرکب جاری بھی آپ سمجھتے چلیں گے. یہ ہے ہمارے حروف جارہ کی لسٹ جو کہ قرآن میں ہے, جو کہ ہمیں کرنے ہیں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ, بلکہ ہو ہی جائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ جیسے جیسے آپ پارے کرتی جائیں گی. بی تا وا کا فی من ان الا علا حتا لی. سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں بی, جس کا کی معنی ہے ساتھ. بی میں اس لیے سب سے پہلے لیا کہ قرآن ہی سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ, ٹھیک ہے. بی ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی اسم کی بائی ڈیفالٹ وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. مطلب اگر کوئی چیز اس پہ اثر نہ کر رہی ہو, جملے میں کوئی چیز اس کے اوپر افیکٹ نہ ڈال رہی ہو, یا کوئی چیز سمجھے کہ الگ سے ٹیبل پہ اگر رکھی ہوئی ہے, قلم الگ سے ٹیبل پہ رکھی ہے اور ہمیں اگر اس کو بولنا ہے تو ہم بولیں گے قلمن. اس کو ہم قلمن یا قلمن نہیں بولیں گے, اس کو کیا بولیں گے قلمن بولیں گے. اور اگر وہ کسی کی ہے اور ہمیں بتانا ہے تو القلم بولیں گے. تو ایک نارمل حالت اسم کی رفع کی حالت ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ القلم یہاں رفع کی حالت میں ہے, لیکن جب اس سے پہلے حرف جر بی آ گیا تو بی نے کیا کیا, میم کی پیش کو زیر میں بدل دیا, اور اب یہ کیا ہو گیا بالقلمی. اب چلتے ہیں بی کے ساتھ دوسرا ایگزامپل, بی نصر اللہ. اب یہاں پہ بی کے بعد والا جو اسم ہے وہ کیا ہے, نصرو ہے. تو اس نے دیکھیں جب بی اس سے ایڈ ہوا, جب بی کے ساتھ یہ مرکب بنا تو ر کی پیش جو ہے وہ زیر میں بدل گئی اور یہ ہو گیا بنصر اللہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت سارے حرکات کو چھوڑ رکھا ہے, وہ صرف اس لیے کہ آپ کا فوکس زیر پہ رہے.
नून स्वाद सबकी हरकत को नहीं लिखा है, और ये कॉमन वर्ड्स हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे कि र की पेश जेर में चेंज हो रही है। बिनस्रिल्लाही, और अल्लाह के नीचे जेर क्यों है वो आइंदा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त आप हरफ जर पे फोकस करें और हरफ जर के बाद वाले इस्म को देखेंगी आप कि वो किस हालत में जा रहा है। इसी तरह देखें बिइज़्निल्लाही, तो हिरा आप बताएं कि इसमें जार मजरूर क्या है? मैम इसमें बी जो है वो हर्फ जार है और इज़्निल्लाही इसमें मजरूर है। नहीं, हाँ, तो अब इसलिए मैंने आपसे पूछा इसीलिए कि इसको क्लियर करूं कि जार मजरूर सिर्फ बिइज़्नी है, इसमें आप जी अल्लाही को नहीं ऐड करेंगी, ठीक है? आप कहेंगी ठीक और बानी, हाँ, बी जो है इसमें क्या है, हरफ जर है, और इज़्नी इसमें मजरूर है, ठीक है? और आपका जो मुरक्कब है वो सिर्फ मुरक्कब जारी जो है वो सिर्फ बिइज़्नी है, ठीक है? तो ये हो गया आपका बिइज़्नी, क्या हो गया, मुरक्कब जारी। आगे देखेंगे कि अल्लाही भी एक दूसरी तरह का मुरक्कब बन के यहाँ पे, मतलब अल्लाह का लफ्ज जो है इस तरह से आ रहा है, लेकिन फिलहाल आपके पास, इसी मैंने ये सवाल इसीलिए किया कि आप सब लोग को क्लियर हो जाए कि बी हरफ जर है और उसके बाद वाला इस्म मजरूर है, ठीक है? अगर उसके बाद कोई लफ्ज आपको दिख रहा है हालत जर में या कुछ, तो हो सकता है वो कोई और वजह हो। फिलहाल आप मुरक्कबे जारी इसी को कहेंगे। चले हीरा, अगले लफ्ज में भी आप बता दें कि बिस्मिल्लाही में हरफ जर क्या है और मजरूर इस्म क्या है, इस्म मजरूर क्या है? इसमें भी जी, इसमें भी बा हर्फ जर है और इसमी ये मजरूर है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। बी इसमें जर है और इसमी इसमें मजरूर है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बिस्मिल्लाही, जिसमें कि मुरक्कबे जारी हमारा है बिस्मी। तो अगर आपको कहा जाए, अगर ये इस तरह से, जाहिर है कभी आयात देंगे या हो सकता है कभी मुरक्कब दे, और आपसे कहा जाए कि मुरक्कबे जारी को अंडरलाइन करें, तो आप सिर्फ बिइज़्नी को अंडरलाइन करेंगी और सिर्फ बिस्मी को अंडरलाइन करेंगी। सबको ये बात क्लियर हो गई? अगर किसी को नहीं हुई तो यहाँ पे पूछें। मैम जो अभी आपने लास्ट सेंटेंस बोला इसको रिपीट करें। लास्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला? यही बोला है कि आप में से किसी को समझ में नहीं आया हुआ तो पूछें। लास्ट सेंटेंस शायद मैंने ये बोला कि बी, जब भी अगर आपसे पूछा जाए, ये वाला सेंटेंस आप कह रही? जी मैम ये वाला। जी, मुझे नाम असल में नजर नहीं आ रहा है आपका। तो जब भी आपको कोई आयत दी जाए या कोई मुरक्कब दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें मुरक्कब जारी अंडरलाइन करें, ऐसे सवाल आएंगे ना, मुरक्कब जारी अंडरलाइन करें या पहचानें या पिक करें। आज के होमवर्क में भी ये मिलेगा आपको। तो उस वक्त आप देखेंगे कि वो हरफ आप पहले सबसे पहले कैसे पहचानने की कोशिश करेंगी? देखें, पहले आप तलाश करेंगी कि वो इस्म जो है उस आयत में या उस मुरक्कब में वो कौन से अस्मा है जो हालत जर में है। तो यहाँ पे आपको दोनों इस्म दिख गए ना, इज़्नी भी हालत जर में है और अल्लाही भी हालत जर में है, ठीक है? आप अपना नाम बता दें प्लीज, जिन्होंने सवाल किया है। मैम फातिमा फ्रॉम ग्रुप 2। जी हाँ, फातिमा। तो फिर समझाने में थोड़ी आसानी रहती है। तो उस आयत में जितने भी आपको हरफे इस्म मजरूर दिखे वो सब आप ख्याल में रख लें। उसके बाद देखें कि किस इस्म से पहले आपके उस शेर में से कोई वर्ड आ रहा है या कोई किस इस्म से पहले हरफे जर आ रहा है। जिस इस्म से पहले हरफे जर आ रहा है तो वो हरफे जर और उसके बाद वाला इसमें मजरूर ही सिर्फ मुरक्कबे जारी होगा। क्लियर हो गई बात फातिमा? जी मैम ठीक है। उसके अलावा कोई भी इस्म अगर हालत मजरूर में है तो आप उसको मत पिक करें। जैसे यहाँ पे लफ्ज अल्लाह हालत जर में है, ठीक है, लेकिन अब हम इससे पहले देखेंगे कि इससे पहले क्या कोई हरफ जर है? तो नहीं, हमको तो एक इस्म नजर आ रहा है इज़्नी, है ना? तो जी मैम। इसको नहीं ले सकते। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी लफ्ज अल्लाह से पहले इस्म है जो कि एक इस्म है, जो कि एक इस्म है, वो हर्फ नहीं है, हर्फ ही नहीं है चजाए कि वो हर्फ जर हो, तो हम उसको नहीं करेंगे। सिर्फ बिस्मी और बिस्नी हुआ। फातिमा को क्लियर हो गया? और सबको भी हो गया? कोई और हो तो वो भी पूछ सकता है। यहीं पे बता दूं मैं।
अब देखते हैं बी के साथ कुछ और एग्जाम्पल. बी और अल आखिरतु, आप देख रही हैं कि सिर्फ हरकत आपको एराब ही आपको दिख रही है, मैंने हरकत नहीं लगाई है. आप भी जब अपने नोट्स बनाएं तो ये सारे अल्फाज बहुत कॉमन है, आप इंशाल्लाह सही ही पढ़ेंगी और समझेंगी. तो सिर्फ एराब ही लगाएं, जिससे जब आप रिवाइज करें तो एक नजर में जब आप अपना पेज देखें तो आपको क्लियर वो चीज नजर आए जो कि आपको जरूरी है. तो बिल्कुल इतनी ही हरकत लगा के आप अपने नोट्स में बनाएंगी. बी पे लगाएं और अल आखिरतु पे देखें हमने तब की हरकत दिखाई है, और फिर बिल आखिरती की बी की वजह से ता मजरूर, मतलब आखिरती मजरूर हो गया और ये हो गया बिल आखिरती. इसी तरह बिखैरिन, बी और अल अज़ाबु ये बन गया बिल अज़ाबी. तो ये हो गए हमारे मुरक्कबे जारी बिल आखिरती, बिखैरिन और बिल अज़ाबी. जैसा कि हमने कहा कुरान जब हम शुरू ही करते हैं तो जो हम पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाही, तो ये बिस्मी हमारा जार मजरूर ही, हम शुरू ही करते हैं जार मजरूर से, मुरक्कबे जारी से. और आयत में बहुत सारे हैं, वो आपको तलाश करिएगा. अगला देखते हैं हरफ जर ता. ता जबर के साथ कसम के लिए इस्तेमाल होता है, और एक खास किस्म कसम के लिए जो कि सिर्फ अल्लाह ताला के साथ मखसूस है. मतलब पूरे कुरान में तल्लाही ही सिर्फ आपको मिलेगा, किसी और चीज की कसम खाने के लिए ता इस्तेमाल नहीं हुआ. तो ये सिर्फ अल्लाह ताला की कसम के साथ मखसूस है. अब आप देखें जब ता आया तो लफ्ज अल्लाह हालत जर में गया, और ये इसका तर्जुमा फिर हम करते हैं अल्लाह की कसम. आयत में आप देखें, आयतें भी हमने थोड़ी थोड़ी ले आए हैं यहाँ पे, जिससे आप देख लें कि कालू तल्लाही, और यहाँ येलो से हाईलाइटेड है यहाँ पे नीचे कि अल्लाह की कसम. तो ता हरफे जर हुआ. जैसा कि हमने कहा कि अगर आपको ये आयत दे दी गई तो आप ये क्या करेंगी. चले इस आयत को करते हैं, ठीक है. सपोज ये आयत दी मैंने और आपसे कहा कि इसमें से आप मुरक्कबे जारी पिक करें, तो आप देखेंगी लफ्ज अल्लाह हालत जर में है. उसके बाद चली जाएंगी आप अल अर्दी हालत जर में है, और सारिकीना ये कौन बताएगा कि ये क्या है. हिरा के बाद किसका नाम था. हिरा के बाद है तूबा ग्रुप 1 की. तूबा ये बताएंगे सारिकीना क्या हो सकता है. सारिकीना आवाज को सोचे, ऊना ईना ईना. ये हालत बतानी कौन सी हालत में. जी जी, तो हम अभी हमारे सारे हर्फ हालत ये ये देख रहे हैं ना कि कौन से इस मजरूर हैं, ये हम ढूंढ रहे हैं. जी, तो ये हालत नसब में है, ये जर में नहीं है, कैसे पता आपको. क्योंकि एन पे नहीं देखें, ऊना ईना ईना, ईना तो हालत जर भी हो सकती है और नसब भी हो सकती है ना. जी. ठीक ठीक है. तो तो इससे पहले हमारे पास हरफ जर नहीं है. लेकिन अभी तो हमने आपसे कहा ना कि हरफ जर के अलावा एक और वजह बची हुई है. तो अभी हम फिलहाल अगर आपसे हम पूछते हैं कि ये सारिकीना क्या है, तो आप कहेंगे या तो ये हालत नसब में है या हालत जर में है. आप समझ गई. क्योंकि हालत ये बात आपको बहुत, इसका मतलब मुरक्कबे जारी, मुझे ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि आपको मुरक्कबे जारी समझ में आ गया. लेकिन हमने अभी आपसे ये पूछा है कि इसमें हम देखें कि ये कौन कौन से इस्म जो है वो हालत जर में हो सकते हैं. तो सारिकीना ये साउंड जो हमको बता रही है नसब की भी है और जर की भी है. तो चांसेस आर देयर कि ये जर भी हो, जो कि हमको भी पता नहीं, क्योंकि हमें अभी सारी वजूहात तो जर की नहीं पता. ठीक है तूबा. जी. तो उसके बाद हम एक एक लफ्ज को जो हमने जर में देख लिया था, अब हम देखेंगे कि लफ्ज अल्लाह से पहले क्या चीज है. कोई हर्फ है, और अगर वो हर्फ है तो क्या वो हर्फ जर है. कोई दूसरा हर्फ होगा तो फिर हम नहीं लेंगे. अगर वो हर्फ है और तो वो हर्फ जर है, तब हम देखेंगे. हमने देखा कि हाँ यहाँ पे ता है, और ता हमने पढ़ा है कि अल्लाह की कसम के लिए ये हर्फ इस्तेमाल होता है तल्लाही. तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि ये हो गया हमारा मुरक्कबे जारी. इसी तरह दूसरा हमारा जो अंडरलाइन वर्ड था, मतलब जो हमने सोचा हुआ था, अभी अंडरलाइन नहीं किया, वो था अल अर्दी. ये भी हालत जर में है,
इसके पहले हमने देखा फी, तो फी भी जो है बाव ताव काफ लामो जब इस तरह करेंगी आप, तो फी भी जो है वो क्या है, हरफे जर है। तो हमें पता चल गया कि ये फिल अर्दी भी जो है वो जार मजरूर हो गया, ठीक है, तो ये भी अंडरलाइन हो जाएगा। जब हम सारिकीना पे पहुंचे तो हमने देखा कि ये ठीक है, ये हो सकता है कि हालत जर में हो, लेकिन इससे पहले कोई हरफे जर नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि ये मुरक्कबे जारी नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से करेंगी। मैं एक दो अभी मैं और बार भी प्रैक्टिस दूंगी इस तरह से कि कैसे तलाश करेंगे। अभी देखते हैं, अभी तो एक लॉन्ग लिस्ट है, इंशाअल्लाह ताला बार बार प्रैक्टिस देंगे तो समझ में आ जाएगी। इसलिए अभी मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि किसकी समझ में नहीं आया, जब मैं 4-5 बार समझा लूंगी तब मैं पूछूंगी कि किसकी समझ में नहीं आया। चलें, ये अगली आयत देखें, यहाँ पे भी वतल्लाही और अल्लाह की कसम, ठीक है। तो ये भी लफ्ज हमारा त जब जाता है, त जब आता है तो वो अपने आगे आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाता है, वो इस्म मजरूर हो जाता है और ये बन जाता है जार मजरूर, और मुरक्कब कौन सा, मुरक्कबे जारी। आपने अभी तक कौन से दो पढ़े, पहला बी पढ़ा और दूसरा त पढ़ा। अब चलते हैं वाह, ये भी वाव कसम के लिए। आप कुरान में जब बार बार तर्जुमा कर रही होंगी तो वाह का आप और कर रही होंगी ना, और तर्जुमा ज्यादा कॉमन है, एंड जो तर्जुमा हम करते हैं तो वह दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक कंजंक्शन के लिए, मतलब ये और के मीनिंग में भी आता है, और दूसरा जो है वो कसम के लिए जब इस्तेमाल होता है तो इसको कहते हैं वाव कसमिया। इसको क्या कहते हैं, वाव कसमिया। अगर आप चाहें तो आपके पास कोई पेपर पेन है तो वहां लिख ले, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इस वाव को कहते हैं वाव कसमिया। ये जो कसम दिख रही है ना, इसी में या लगा ले, कसमिया, और लिखने के बाद पेन को फिर वापस रख दे। तो अब हो गया वाव कसम के लिए। और ये वल्लाही, जो अरब मुल्कों में रहे हैं उन्होंने तो ये बहुत सुना होगा, ये लफ्ज वल्लाही, अल्लाह की कसम। और इसी तरह वल कमरी, वाव जो है अल कमरू को हालत जर में ले गया और ये मुरक्कब बन गया वल कमरी। और जैसे ही हम देखेंगे कि वाव के बाद आने वाला इस्म हालत मजरूर, मतलब अब वो मजरूर है या हालत जर में है, अब हम उसका तर्जुमा और नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कसम करेंगे। कसम है चांद की, वत्तीनी। हमने वाव देखा और हमें पता है कि वाव दो तरह के हैं, एक है वाव अतफिया जो कि गैर आमला है। चलें आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देते हैं कैसे। अब आप सोच रही होंगी कि कैसे समझेंगे कि वो ये वाला है, और इसका तो पता है कि ये जर में ले जाएगा, वो क्या करेगा, उसका वो कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए पता चल जाएगा कि वो एंड का तर्जुमा देगा, अपने आगे आने वाले इस्म पर कोई असर नहीं डालेगा, उसकी हालत को चेंज नहीं करेगा। तो ऐसा वाव जो अपने आगे आने वाले इस्म की हालत को ना चेंज करे, वो वाव अतफिया होगा, मतलब कि उसका तर्जुमा हम कर रहे होंगे और। जबकि वो वाव जो अपने आगे आने वाले इस्म को जेर दे देगा, उसका तर्जुमा हम करेंगे कसम। और ये वत्तीनी कसम है अंजीर की। इसी तरह वशम्सी, अब जैसे ही हमने देखा कि आगे सीन के नीचे जेर आ गई है तो हम फौरन तर्जुमा समझ जाएंगे कि हमें इसका तर्जुमा और नहीं करना है, कसम करना है। कसम है सूरज की। तो अब ता और वाव में क्या फर्क हुआ, आपने देखा कि ता सिर्फ अल्लाह ताला की कसम के लिए इस्तेमाल हुआ था, जबकि वाव अल्लाह ताला की भी कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है, होता है। माइक म्यूट कर ले प्लीज। और दूसरी चीजों की कसम के लिए भी वाव कसमिया इस्तेमाल होता है। तो वाव और ता में ये फर्क है कि ता सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और वाव अल्लाह ताला की कसम एज वेल एज दूसरी चीजों की कसम भी के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ देखिए बस खदीजा बाजी, आप माइक म्यूट कर देंगी प्लीज, अगर किसी का हो, क्योंकि हम यहाँ से कर नहीं पा रहे। जी कर दिया। वस्साफाती सफ़ा,
تو قسم ہے صف باندھنے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ والصافاتی, جیسے ہی دیکھا کہ الصافاتی, آپ نے جو اب سب سے آخر لائن میں آپ چلی جائیں, جو آپ نے 36 ورڈ کی گردان یاد کی تھی, میں کہوں گی کہ اگر آپ کی کوئی اسٹڈی ٹیبل ہے تو اس پہ آپ وہ 36 لفظ کی گردان ہر ہفتے ہر ویکینڈ ایک نئی گردان وہاں لگا لیں, جس سے اب یہ دیکھیں بس صافاتی, یہ اس گردان کی لاسٹ لائن میں لاسٹ 2 ورڈز ہیں. مطلب یہ تو یہ نصب کی حالت میں ہو سکتا ہے یا جر کی حالت میں ہو سکتا ہے. اور جیسے ہی ہم نے اس کو دیکھا کہ اس سے پہلے تو حرف جر واو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جر کی ہی حالت میں ہے. اور والصافاتی جر والا واو جو ہے وہ قسم کا ترجمہ دیتا ہے. اور یہاں دیکھیں نیچے ترجمہ آ گیا, قسم ہے صف باندھنے والوں کی. تو یہ ہو گیا واو کی وجہ سے یہ الصافاتو حالت جر میں گیا, الصافاتی ہوا, اور ترجمہ ہوگا اس کا قسم ہے صف باندھنے والوں کی. اسی طرح والطوری, جب آپ آخری پاروں میں آئیں گے تب اس کی بہت زیادہ پریکٹس ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. والطوری قسم ہے طور کی. کیوں قسم کو ترجمہ کیا گیا؟ کیونکہ ہم نے را کے نیچے زیر دیکھی تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ واو قسمیہ ہے اور یہ حرف جر ہے, اور یہ جار مجرور ہوا اور مرکب ہوا مرکب جاری. اب چلتے ہیں نیکسٹ حرف جر کا کی طرف. کا معنی ہوتا ہے کی طرح, جیسا یا مانند, لائک, اس طرح سے یہ ترجمہ ہے اس کا. اور دیکھیں یہ الحمارو کو اس نے کیا کیا, کا نے ر کو زیر دے دی, اور یہ ہو گیا کل حماری گدھے کی طرح. کل جبالی پہاڑوں کی طرح, کل حجارتی پتھروں کی طرح. تو یہ جار مجرور کی کیسے ہم پہچان کریں گے کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ اسم حالت جر میں ہے, پھر ہم اس کے دیکھیں گے کہ اس کے لیفٹ سائڈ میں حرف جر ہے. اس کے لیفٹ سائڈ سے میرا مطلب اس کے پہلے آنے والا لفظ جو ہے وہ حرف ہے. پھر حرف میں بھی وہ کیا ہونا چاہیے, حرف جر ہونا چاہیے, حرف جر کی لسٹ میں ہونا چاہیے. پھر ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ جار مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے. قرآن سے دیکھیں, کل فخاری ٹھیکری کی طرح, ترجمہ اس کا ہوگا ٹھیکری کی طرح. اور یہ ہے ہمارا کا حرف جر, اور فخار زیر آنے کی وجہ سے اس میں مجرور, اور یہ ہو گیا ہمارا جار مجرور اور مرکب جاری. زینب آپ مائک انمیوٹ رکھیں تو میں آپ سے پوچھوں. جی میم. کل فراشی کو ایکسپلین کریں زینب پلیز. جی کا اس میں حرف جار ہے اور الفراشی اس میں مجرور ہے, اور یہ مرکب جاری. ویری گڈ, جار مجرور مرکب جاری. ٹھیک ہے, تو آسان لگ رہا ہے. جی میم الحمدللہ. زینب اب چلتے ہیں نیکسٹ مرکب پہ, فی. آپ ہی پڑھیں زینب, اس سلائیڈ کو آپ ہی پڑھیں. فی کا مطلب ہے میں, ان, فی البیتی گھر میں, فی المسجدی مسجد میں, فی الکتابی کتاب میں, فی الجنتی جنت میں. جی ہاں, جزاک اللہ زینب. ہم نے صرف اس لیے پڑھایا کہ دیکھیں ہم نے باقی وہ حرکات نہیں لگائے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں. الفاظ اسی طرح سے چوز کیے کہ جو کہ آرام سے پڑھ سکے آپ, اور صرف آپ اعراب کو بہت کلیئرلی دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا فی کے ساتھ. اور یہ فی بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. فی السماواتی, زینب کے بعد اس کا نام ہے سعدیہ جمال گروپ 4. یہ بتائیں کہ السماواتی کس حالت میں ہے, اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ حالت نصب اور حالت نصب اور حالت جر میں. ہاں, یہ السماواتی حالت نصب یا حالت جر میں ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آخر کی ساؤنڈ کی آتو آتی ہے نا. آپ نے بہت صحیح پہچانا. اب بتائیں کہ اس جملے میں یہ کس حالت میں ہے؟ اس حالت پہ یہ حالت جر میں ہے اور مجرور ہے, اور فی جو ہے اس کا جر ہے, ویری حرف جر ہے.
माशाल्लाह, बहुत ही सही बताया कि अस्समावाती नसब और जर दोनों हालत में हो सकता था, लेकिन इस आयत में अस्समावाती सिर्फ हालत जर में है और ये बन रहा है जार मजरूर मुरक्कब जारी। ठीक है, जी। फिल अर्दी भी बता दें। फिल अर्दी में भी ये अल जो है, अल अर्दी जो है वो मजरूर है और फी जो है हालत जार हरफ जर है। जो हमारी पोएट्री थी अरब की, उसमें ये किस लाइन में आ रहा है? अल अर्दी, अल इसको अर्दी, सॉरी ये वाहिद का है ना, तो बस आप इस तरह उन अन इन, और चूंकि उन अन इन तनवीन जो है अल की वजह से चली जाती है, तो वही ये है उ आ ई। ठीक है जी। इस तरह से आप समझ लेंगी। इस जुमले में कोई और मुरक्कबे जारी है? जल्दी से देख के बताएं। बिल्लाही, वेरी गुड। ठीक है, बिल्लाही भी हालत जार मजरूर है यहाँ पे। वेरी गुड। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं अंडरलाइन किया था क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फी, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुरक्कबे जारी की तादाद कितनी है, बहुत ज्यादा। अब अगला हर्फ है हमारा मिन, जिसका की मतलब है से या फ्रॉम। जी मैम। ये अपने आगे आने वाले देखें, अल बैतू को इसने बैती अल बैती कर दिया, अस्समाऊ को अस्समाई कर दिया, इसी तरह अल मस्जिदू को क्या कर दिया? अल मस्जिदी। तो ये बन गया हमारा मिनल बैती जार मजरूर बन समाई मिनल मस्जिदी, मुरक्कबे जारी। हाँ बिल्कुल, ये देखें यहाँ पे मिनल लाई, ये हमारा हो गया मुरक्कबे जारी, जिसमें मिन है हरफे जर, और लफ्ज अल्लाह जो वो हालत जर में है। जब भी आएगा तो आप कहिएगा लफ्ज अल्लाह, इसीलिए मैंने आपसे नहीं इसको कहलवाया, सिर्फ अल्लाह नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? लफ्ज अल्लाह। इसमें जलाला मैम आपने बताया। तो ये लफ्ज अल्लाह जो है हालत जर में। अब यहाँ पे देखें, इसको बताएं, आप इसको एक्सप्लेन करें। मैम ये जो मिन है ये हरफे जार है और कुल्ली मजरूर है, हम इन कुल्ली दोनों मिलके जार और मजरूर मुरक्कबे जारी बन। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और तर्जुमा करते हैं, से का मतलब होता है, मिन का मतलब क्या होता है? से। अब आप देख रहे हैं एक दूसरा वर्ड है, उसका भी मतलब है से। उर्दू में तो हमारे पास एक ही से है और इंग्लिश में भी एक ही फ्रॉम है, लेकिन अरबिक में दो है और इसमें थोड़ा फर्क है, जो हम जब आगे डिटेल में करेंगे कभी तो ज्यादा फर्क पता चलेगा। जो थोड़ा सा बता सकते हैं वो ये कि अन में अबाउट का भी मीनिंग आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वहां पे अबाउट का मीनिंग नहीं आएगा, लेकिन थोड़े से फर्क के साथ ये दोनों अल्फाज ही से का माना देते हैं। अन, ये अन अभी आप लोगों ने आज ही किताबुल इल्म का पेपर दिया, अहादीस आप लोगों ने अरबिक में पढ़ी? जी मैम पढ़ी है ना? तो जब आपने पढ़ी तो आपने ये वहां पढ़ा अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु? जी मैम पढ़ा ना ये लफ्ज है? जी हाँ, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये अन जो है आपने पढ़ा था इसको अस्माए मुकब्बरा में कि अबू अबा अबी पढ़ा था, ये अखू अखा अखी। तो वहां से देखिए ये अबू था ये, और अन के आ जाने की वजह से अबू जो है वो अबी यानी थर्ड कॉलम में चला गया, जर में चला गया, और ये हो गया क्योंकि नेक्स्ट इसम क्या है अन के बाद? अबी। ठीक है, हुरैरा, हुरैरा नहीं, अबी जो है वो नेक्स्ट इसम है, तो ये अबी किस में चला गया? हालत जर में, और ये हो गया अन अबी हुरैरता। तो अहादीस में आपको जब आएगा कि उनसे रिवायत है, उनसे रिवायत है, तो ये अन का लफ्ज इस्तेमाल होता है बजाय मिन के। ठीक है, इसी तरह दूसरा लफ्ज देखे अन अनसिन, तो ये अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत। इसी तरह अन जिक्रिल्लाही, तो अन ने क्या किया? बाजी अन जो है वो हुर्फ जार होगा और जिक्री जो है वो मजरूर होगा और जिक्रिल्लाही हुर्फ जारी होगा। हाँ, हमने चलेंगे फिर एक बार बताते हैं, सब लोग गौर से सुन लें। ठीक बताया आपने, आपने समझा सही है, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो अच्छा है। अन जो है वो हमने क्या बताया कि आपको ये देखना है कि कौन से इस्म हालत जर में है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा इकरा कि
दो लफ्ज आपको हालत जर में दिखाई दिए, जिक्री और अल्लाही, लफ्ज अल्लाह भी, ठीक है, ये दो आपको दिखाई दिए। अब जी बाजी। आपको ये मुरक्कबे जारी के लिए हमने कहा कि मुरक्कबे जारी के दो पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट्स होना जरूरी है ना। तो जिक्री से पहले आप देखेंगी कि आपको हरफ जर दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा हाँ दिखाई दे रहा है, मन जो है हरफ जर है, हर्फ बोलेंगे, हुर्फ नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्लूरल जब बोलेंगे तब बोलेंगे हुरूफ, लेकिन जब सिंगुलर बोलेंगे तो बोलेंगे हर्फ, ठीक है इकरा। जी जी बाजी, समझ गई। तो ये जी बाजी, ये अनदिक्रिल्लाही में अल्लाह के जो है उसमें भी कसरा आया, फिर ऊपर जो अन अबी हुरैरा है, तो अबी हुरैरा में कसरा इसलिए नहीं आया कि बाजी वो ता मरबूता है, और वो एक मतलब मैं आपका सवाल समझी नहीं कि अबी हुरैरा, तो हुरैरा जो है पर कसरा नहीं है, वो हम पूछ रहे थे। ये दोनों कसरा नहीं है, लेकिन ये बताएं कि ये हालत जर में है या हालत जर में नहीं है, मतलब कि ये क्या हालत जर में हो सकता है या नहीं। चले मैं वक्त कम है तो मैं ही आंसर कर देती हूँ कि अबू हुरैरा वो इस्म जो बोलता पर खत्म हो वो गैर मुंसरिफ होते हैं। गैर मुंसरिफ का मतलब ये है कि वो हालत जर में और नसब में दोनों में ही फतहा लेंगे, ठीक है। जी जी। अभी तो हमारा वैसे फोकस तो है नहीं, अभी आपने ये पूछ लिया तो बता दिया, वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, ठीक है। अभी तो हम बस जार मजरूर देख रहे हैं। हमें दो वर्ड ऐसे चाहिए जिसमें पहला वर्ड हरफ जर हो और दूसरा इस्म हो जो कि हालत जर में हो, ठीक है। हमको बस ये दो लफ्ज चाहिए, ऐसा इस्म। तो अभी तो हमारा अन और अभी से काम चल गया, हुरैरा को देख लेंगे बाद में कि ये किस हालत में है। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में ही इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम, ठीक है। तो इकरा के साथ चल रहा था हमारा कि अन जिक्रिल्लाह। मदीहा भी अपना नाम है, मदीहा काशिफ बोला था, दूसरे मदीहा वकास। हाँ हमने बोला था, लेकिन मदीहा आप आई नहीं वक्त पे, तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में नहीं, मैं इसमें क्लियर नहीं रही कि मैम आपने मदीहा वकास, मैम इसमें मैं बताऊं ये किस तरह से। मैम अन जो होगा ये हरूफ जारा है, और जिक्री जो है ना ये है इसमें मजरूर, अल्लाह इसमें नहीं है, दो में होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि लफ्ज अल्लाह से पहले कोई हरफ जर नहीं है, तो हम उसकी हालत जर को अभी हम नहीं देखेंगे, वो कोई और वजह होगी जो हालत जर में है, जो कि अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। आप ऐसे सब्र करें, अभी बस आप सोच लें कि इसकी कोई वजह होगी जो अभी मुझे पता नहीं। सिर्फ उस इस्म को आप पिक करेंगी जिससे पहले की हरफ जर होगा, ठीक है। तो आपके पास अन और जिक्री, बस ये दो, अन हर्फ हो गया और हरफ जर हो गया, और जिक्री जो है वो इस्म हो गया जो कि हालत जर में है। तो बस आपका अन जिक्री ये हो, इसको आप अंडरलाइन करेंगी, और ये है आपका मुरक्कबे जारी। ठीक बताया मदीहा आपने, हाँ सॉरी मेरी गलती थी कि मैंने मदीहा दो है तो मुझे ग्रुप नंबर भी बोलना चाहिए था। चले मदीहा अगला वाला आप कर दें। बाजी एक बात बताएं, जार और मजरूर एक साथ ही होंगे, और हुरूफ जारी जो है वो बाद में या पहले हो सकता है, या बाद में ही होगा। नहीं मैं समझी नहीं कि हर क्या बोला आपने, फिर से बोले। आप जैसे मैं कह रही हूँ कि जार और मजरूर तो एक साथ ही होंगे, जैसे अन और जिक्री तो एक साथ ही है, फिर अल्लाह ही बाद में जाकर है, तो मतलब ये कि हुरूफ जारी है तो फिर वो बाद में होगा, और अन और जिक्री, जार और मजरूर एक साथ ही होंगे। देखिए अल्लाह को आप हरूफ क्यों कह रही हैं, ये तो लफ्ज है, ये तो इस्म है। हाँ हाँ मतलब इस्म, सॉरी है ना, तो ये इस्म है, अभी आपका वो फोकस है ही नहीं। हमने बताया कि हालत जर में जाने की वजूहात और भी है, एक वजह और भी है, वो वजह जब जानेंगे तो पता चलेगा। अभी सिर्फ इस वक्त इस क्लास में और इसके बाद पूरे हफ्ते तक आप सिर्फ उन अस्मा को देखेंगी जो हालत जर में होंगे और उससे पहले हरफ जर आ रहा होगा, बस ये दो। उसके अलावा कोई भी इस हालत जर में है आप उसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। क्लियर हो गया? जी जी भाई। अन जिक्रिल्लाह ये पूरा एक फ्रेज बनता था ना, तो इस वजह से हमने लिखा यहाँ पे। अब अगर सिर्फ अन जिक्री लिखें तो फिर वो उतना
कान को अच्छा नहीं लगता। फिर इसी तरह अन अभी लिखते हैं हम, तो हम फिर कैसे आपको रिलेट करते हैं आपके किताबुल इल्म से, इसलिए हमें वहां पे हमने लेके आए कि अन अबी हुरैरा आपने बहुत पढ़ा होगा, और आज एक बार फिर किताबुल इल्म खोल के वहां एक दो हदीस में देख लीजिएगा कि कैसे लिखा है, ठीक है। तो इसलिए हमें अगला लफ्ज भी लाना पड़ा जिससे कि थोड़ा फ्रेज हो जाए, कंप्लीट फ्रेज हो जाए हमारा। लेकिन हमारा मुरक्कब जो है इसमें याद रखें कि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे और आप लोग अगर एग्जाम्पल लिख रही हैं तो ये लिखने के बाद लिखेंगे अन अबी को रेड अंडरलाइन करेंगी, अन अनसिन को रेड अंडरलाइन और अन दिक्री को रेड अंडरलाइन। उसके अलावा जो कोई लफ्ज होगा उसको आप छोड़ देंगे। अब जैसे इस आयत में जिस तरह हमने किया है कि हमने सिर्फ अन मुनकरिन अम मुनकरिन को किया है ना, हमने देखा कि मुनकरिन ये भाई तनवीन बता रही है कि ये इस्म है। चलें इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तनवीन बता रही है, आमना ग्रुप 4 की आप तैयार रहिएगा। अन हमको मुनकरिन की तनवीन बता रही है कि ये इस्म है, और फिर इसकी जेर तनवीन बता रही है कि ये हालत जर में है। अब हम देखेंगे कि इससे पहले क्या कोई हरफ जर आ रहा है। जी हाँ, अन हरफ जर है, और ये हो गया हरफ जर और इसमें मजरूर, जार मजरूर, मुरक्कबे जारी। बस एज सिंपल एज दैट, मतलब बहुत ही आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और चले यहाँ आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा एक लेके आए इस तरह से कि इससे पहले कि आप सवाल करें मैं ही यहाँ पे बताऊं कि अन कौल, यहाँ पे देखें कौलू था, ये हिम जो है प्रोनाउन है, अटैच्ड प्रोनाउन है, ये अलग वर्ड है। ये कौल हिम, ये दो वर्ड से मिलके बना है, कौल और हिम से या हुम से, जो कि यहाँ पे हिम हो गया, ठीक है। तो आपका जो इस्म है, अन के बाद वाला जो इस्म है वो सिर्फ कौलू ही है, कौली जो अब हो गया। समझ में आ रहा है सबकी? क्योंकि हिम जो है वो तीसरा इस्म है, वो इस्म ज़मायर है, ठीक है। तो ये कौलुन था, कौलुन से ये कौली हो गया, और फिर अन कौली ये आपका जार मजरूर है। आप अंडरलाइन करते वक्त हिम भी अंडरलाइन कर देंगी तो यहाँ मसला नहीं होगा। यहाँ पे हमने कोशिश की है, देखिए हमने जब अंडरलाइन किया है तो हिम को छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ कर देंगी तो ओके। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अन्य कौली को कौली यहाँ पे हालत जर में है। ये बात सबकी समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा जार मजरूर। जल्दी से हम कर लेते हैं, 3 मिनट में हमारे 2 रह जाते हैं, और अगर नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड इला, जिसका की मतलब है तक। जैसे वहां तक, कोई दूर की जगह हम वहां तक का इशारा करें, वहां तक, या की तरफ का भी तर्जुमा आता है। इंग्लिश में जैसे हमने लिखा टू और टूवर्ड्स, दोनों ही मीनिंग इसकी आ सकती है। उस जुमले में ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ देखिए इला और अल बैतू था। अब इला के आ जाने की वजह से ता के नीचे जेर आ गई और लफ्ज बन गया हमारा मुरक्कब इलल बैती। इला हरफे जर, अल बैती इसमें मजरूर, जार मजरूर, मुरक्कबे जारी, तर्जुमा होगा घर की तरफ। इसी तरह इलस समाई आसमान तक, इलल जिबाली पहाड़ों की तरफ या पहाड़ों तक, इट डिपेंड्स कि सेंटेंस में क्या चाहिए। इलल मस्जिदी मस्जिद तक, तक और तरफ दोनों ही तर्जुमा की तरफ। यहाँ पे देखें, फिर इसीलिए यहाँ पे तर्जुमा भी दिखा दिया गया कि इला और उसके आगे जब लफ्ज जलाला आया, इसमें जलाला आया तो लफ्ज अल्लाह पर जेर आ गई और ये हो गया मुरक्कबे जारी इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ। इसी तरह इलस समाई आसमान की तरफ, आप हाईलाइटेड देख लें जल्दी जल्दी, और इलर रसूली रसूल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अला, और इसका की मतलब है पर, ऑन या एट इंग्लिश में। अलल अर्शी अर्श पर, ये देखिए अर्श यहाँ पे हालत जर में है, जेर नजर आ रही है शीन के नीचे, और ये हो गया अला है हरफे जर, अल अर्शी इसमें मजरूर, दोनों मिलके हो गए जार मजरूर, और मुरक्कब हो गया मुरक्कबे जारी। अला कुलूबिहिम, ये बा के नीचे की जेर कुलूबू था, ये कुलूबी हो गया उनके दिलों पर। अगर अला कुलूबिन होता तो ये होता दिलों पर, और हिम भी लगा हुआ है इसमें तो उनके दिलों पर। फिर अला समहिम, इसलिए हमने ये लेके ये तर्जुमा दिया, आई मीन ये लफ्ज लिया क्योंकि आपने ये
सूरह अल बकरा में किया हुआ है। अला समइहिम, तो ये आयन के नीचे की जेर जो है ये बता रही है कि ये अला के आने की वजह से इसने जेर कबूल किया और हालत जर में चला गया ये इस्म और बन गया अला समइहिम, उनके कानों पर, अला अबसारिहिम, उनके आंखों पर। कुरान से देख लें, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, तो ये कुल्ली ये इस्म था, अल्लाह के आने की वजह से आपको ये हालत जर में नजर आ रहा है, और हर चीज पर। इसी तरह अलल आलमीना, यहाँ देखिए अब अल आलमीना, जैसे ही अल आलमीना आया, अब ये आपका जो अल वाली साउंड थी उसमें आप मुजक्कर वाली लाइन में जाएंगी और आप देखेंगे कि अल के साथ जब आ रहा था तो ऊना ईना ईना, खैर बिना अल के भी यही साउंड है, तो ऊना ईना ईना, तो ये हालत नसब भी हो सकता है, हालत जर भी हो सकता है। अब हम इसके पहले जब गए तो हमें हरफ जर मिल गया, इस हरफ जर ने ये कंफर्म कर दिया कि ये हालत जर में है। जब आप ये कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि अभी आप सोच रहे होंगे कि हालत नसब में भी ऐसा ही है और हालत जर में भी ऐसा है, तो हम कैसे पहचानेंगे? उस वक्त हमने कहा था अभी आप याद करें, आगे हम बताएंगे कि आप कैसे पहचान लेंगे, और बहुत आसानी से। यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे हरफ जर ने ये बता दिया कि अल आलमीना, हालांकि ईना की साउंड नसब की भी है और जर की भी है, लेकिन ये अब हमारा अल आलमीना लफ्ज जो है ये हालत जर में ही है, नसब में नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हरफ जर है जो कि अपने आगे आने वाले इस्म को मजरूर कर देता है, हालत जर में ले जाता है। तो ये कंफर्म हो गया, अब किसी तरह की किसी शक या डाउट की जरूरत ही नहीं है। अल आलमीना अगर आपसे कोई पूछे, पूरा अगर आपसे पूछे कि अल आलमीना, तो आप कहेंगे अला हरफ जर है और अल आलमीना ईना की साउंड बता रही है कि ये मजरूर इस्म है और ये हमारा जार मजरूर मुरक्कब जारी। उसके बाद बस अल्लाह को पूरा कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला, और अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अल्लाह देखिए यहाँ अलल मुमिनूना, सिर्फ इसलिए ये आपको ऊना ईना की साउंड की प्रैक्टिस देने के लिए। एक बार किसी ने पूछा था हमसे कि हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, उस पे हमने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि भूलने ना दें आपको, तो इसीलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स लेके आए कि देखें ऊना की साउंड क्या थी, आपकी रफा की साउंड थी, और जैसे ही अला आया, इस अला ने ऊना ईना ईना, इसको सेकंड कॉलम में ये लेके नहीं गया। आपने हमने भी क्या पढ़ा, ऊना ईना ईना, तो ये अला जो है इसको थर्ड यानी लास्ट कॉलम यानी जर वाली कॉलम में ले गया और ये बन गया अलल मुमिनीना। अब आप इसको, अगर हम आपसे ये पूछें कि ये अल मुमिनीना किस हालत में है, तो अगर आप कह देंगे नसब की हालत में है तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत आंसर हो गया। अब आप कंफर्म होके कहेंगे कि अल मुमिनीना ये हालत जर में है। इसी तरह अला और अल कादिबूना था, अला के आने की वजह से, अला के इसके पहले आ जाने की वजह से इसने ईना की साउंड ली जो कि हालत जर वाली साउंड ली, नसब वाली नहीं। तो ये अलल कादिबीना, अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगी अल कादिबीना हालत जर में है। क्यों? क्योंकि इससे पहले अला आ रहा है। बस इसमें देख लें, और अल्लाही, अल्लाह पर झूठ बांधा। और नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में करते हैं। क्लास का वक्त हमारा पूरा हो गया, 2 मिनट हम टीचर से और लेंगे, और बस किसी से पूछ लें कि अगर किसी की समझ में नहीं आई है कोई बात तो मुझे यही क्लास में बता दें, क्वेश्चन वो यहाँ कर दें और आंसर मैं इंशाअल्लाह ताला ग्रुप में करूंगी। किसी को अब तक कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज पूछ लीजिए, सवाल यहाँ कर लीजिए, जवाब आपको ग्रुप में मिलेगा। सबको क्लियर है? मैं पूछना था जी मैम। मैम आवाज आ रही है मेरी? बोले। जी हाँ आ रही है मैम। वो जो पीछे बताया था ना मैम, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था ना वक्फ, और मैम वो मेरा जो है थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम था, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो मुझे समझ नहीं आया वो उसमें 36 चीजें क्या थी, 36 कुछ आपने बताया। अब पूछे, क्या आप पूछ रही हैं?
मैम यहाँ पर आपने कुछ बताया अपना था नाम बता दे पहले मुझे। मैम, सलमा जबीन। जी हाँ सलमा, यहाँ मैंने ये बताया था वाव कस्मिया, इस वाव को जो कि अपने आगे आने वाले इसम को हालते जर में ले जाता है उसको वाव कस्मिया कहते हैं। और आज की क्लास में मैंने आपसे सिर्फ इन्हीं 2 वर्ड्स को कहा था कि आप लिख लें वाव कस्मिया। एक तो ये बात थी, और अगर आप अस्साफाती, ये अस्साफातू अस्साफाती अस्साफाती, ये आपकी उसी लिस्ट की लास्ट लाइन चल रही है जो अल मुस्लिमातू अल मुस्लिमाती अल मुस्लिमाती। ठीक है, ठीक है सलमा? जी मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो इस वाव ने इसको अस्साफातू को अस्साफाती में चेंज कर दिया, और ये अस्साफाती सेकंड कॉलम वाला नहीं है। कौन से कॉलम वाला है सलमा? जी मैम, अस्साफातू था, ये अस्साफातू। हाँ, अस्साफातू था। ये वाव ने इसको फर्स्ट कॉलम से किस कॉलम में कर दिया? मैम ये जर में चला गया ना, हालत जर में चला गया ये। हाँ, जर में चला गया। तो लेकिन आपकी टेबल में ये सेकंड कॉलम में गया या थर्ड कॉलम में गया? मैम ये थर्ड में चला गया ना। हाँ बिल्कुल सही, यही मैं आंसर सुनना चाह रही थी। आपको समझ में आता है माशाल्लाह। तो ये थर्ड कॉलम में चला गया। तो आप था वो आपका क्लियर हो गया? जी मैम, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी का कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी हाँ बोले, एक एक करके बोले। जी वालेकुम बाजी, मुझे अस्सलाम। लफ्ज़ जो आमला है उसका मुझे समझ नहीं आई। आमला क्यों कहा जाता है इसको, हरफ जर को? जी हाँ चले बताते हैं। आमला का मतलब है अमल करने वाला, अमल करने वाला, है ना? ऐसा अमल करे जिसका कोई रिजल्ट आ रहा हो, जो कुछ नजर आ रहा हो, चेंज नजर आ रहा हो। अब देखें, ये इला को अभी आप नहीं देखी, स्क्रीन देख रही हैं आप? चलिए कोई, चलिए हाँ स्क्रीन पे देखें। ये था, इला को भी आप मत देखें। ये लफ्ज था अर रसूलू। आपने जब अपनी गर्दान याद की है तो क्या याद किया था? अल मुस्लिमू याद किया था ना? आप अपना नाम बता दें प्लीज। आप अपना नाम बता दें तो मुझे आसानी हो जाती है। शमीम शाहद। शमीम जी। जी शमीम शाहद। जी हाँ जी शमीम। तो अल मुस्लिमू आपने याद किया था, तो उसी के पैटर्न पे ये था अर रसूलू। ठीक है। अब वजह, ये जेर की वजह क्या हुई? इला जब इससे पहले आया तो उसने उसकी पेश को जेर, उसकी रफा की हालत को मजरूर कर दिया। तो ये अमल किया ना उसने, उसके ऊपर इफेक्ट डाला ना। जी जी। आमला का मतलब है इफेक्टिव, ऐसे हुरूफ जो इफेक्ट डाले, असर डाले। और कुछ हुरूफ हैं जो असर नहीं डालते। चले मैं एक हर्फ आपको ऐसा दे देती हूँ, जैसे कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो जब पहले आते हैं तो कोई असर नहीं डाल रहे होते हैं। हाँ आप देखेंगे, आपके शमीम आप फर्स्ट लाइन देख रही हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं सभी से। जी हाँ, अब ये देखिए आप फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, इससे पहले वह दिख रहा है आपको, और ये है अल अहबारू। जी। तो अल अहबारू तो अल मुस्लिमों की ही शेप में है ना? जी। अब ये देखिए इससे पहले वह आया, इसने इसकी हरकत को चेंज नहीं किया, ये पेश रह गई। I mean, इसके एराब को चेंज नहीं किया, इसकी पेश रह गई। इसका मतलब है ये वाव गैर आमला है। सही। ठीक है। और इसका तर्जुमा और होगा, कसम नहीं होगा। क्या होगा? और कसम के लिए नहीं होगा जी, कसम के लिए नहीं है तो और के लिए है, इसलिए उसने चेंज नहीं किया उसको। जी हाँ, ये थोड़ा कमजोर हर्फ है। और हमने क्या बताया, हरूफ जर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हरूफ है, इसीलिए सबसे पहले आपको वो पढ़ाए गए। क्लियर हो गया शमीम? जी बिल्कुल, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह खैर। हत्ता, उर्दू में भी हम हत्ता वर्ड यूज करते हैं, और इसका मतलब भी वही सेम है जो उर्दू में है, तक और टिल, अनटिल या टिल इंग्लिश में। अब ये आयत तो सबको भी याद होगी, हत्ता मतलइल फज्र। एक बार फिर मैं बता दूं कि हम इसमें हम सिर्फ
حروف کے ہم نے وہ لیے ہیں حرکات لیے ہیں, اور آگے آنے والے اسم پر جو چینج آ رہا ہے صرف آپ کو وہ حرکت نظر آ رہی ہے. اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ وہی آیتیں لی جائیں جو آپ آرام سے اور صحیح سے پڑھ سکیں. حتی مطلع الفجر, دیکھیں حتی کے آنے کی وجہ سے عین کی پیش زیر میں چینج ہو گئی ہے نا. واحد میں ای کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا, تو ای لاسٹ کالم کے ساؤنڈ ہے, تو یہ ہو گیا حالت مجرور. اور حتی مطلعی, بس اتنا, حتی مطلعی اتنا ہمارا ہوا جار مجرور, الفجری نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو لفظ حرف جر اور اس کے بعد آنے والا اسم مل کے مرکب جاری بنیں گے, اور انہیں ہم کہتے ہیں جار مجرور. اسی طرح حتی حین بھی یہ بہت آتا ہے, ایک مقرر وقت تک. آپ دیکھیں تک کا ترجمہ یہاں آ رہا ہے آخر میں, یہ تک حتی کی وجہ سے. قرآن میں دیکھ لیتے ہیں, ابھی جو اگزامپل اوپر دیکھا تھا وہی ہے یہاں پہ, حتی کے آنے کی وجہ سے حینن میں چینج ہو گیا. ان ساؤنڈ تھی رفع کی, اور یہ رفع کی ساؤنڈ چینج ہو گئی جر میں, لاسٹ کالم میں چلا گیا یہ, اور یہ ہو گیا مجرور. اور آپ دیکھیں یہاں نیچے ترجمہ آ رہا ہے تک. پھر وہی جو اوپر تھی آیت حتی مطلع الفجر, اور یہاں پہ طلوع ہونے تک. اور آپ دیکھیں کہ صرف یہی دو ورڈ انڈر لائن ہے. ٹھیک ہے, آگے کی الفجری کی زیر پہ جا کے اس کو آپ انڈر لائن نہیں کریں گی, وہ کسی اور وجہ سے ہے. اب ہے لی لام جارہ, جس کا کی مطلب ہے لیے. لام بھی کئی طرح کے ہیں, آپ دھیرے دھیرے ایک ایک دیکھیں گی. لی ترجمے میں آپ دیکھ ہی رہی ہوں گی, لیکن انشاءاللہ جب آپ گرامر کر لیں گی تو وہ ساری رٹنے اور اس کی والی محنت ختم ہو جائے گی, اور آپ کو انٹرسٹ آنے لگے گا. تو یہ پہلا لی آپ کے لیے, جس کو کہتے ہیں لام جارہ. کیوں لام جارہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو جر کی حالت میں لے جائے گا, اور اس والے کا ترجمہ ہوگا, اس لی کا ترجمہ ہوگا کے لیے. اگر یہ لی اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور حالت میں نہ لے جائے تب ہم اس کا ترجمہ کے لیے نہیں کرتے, کچھ اور کرتے ہیں. اس وقت میں وہ سب بول نہیں رہی ہوں کہ آپ کہیں مکس اپ نہ ہو جائیں. یاد رکھیں کہ جب لام جارہ مطلب جب لی کے بعد آنے والا اسم مجرور حالت میں ہو تو آپ اس کا آرام سے ترجمہ کر لیں کے لیے. اب لی اجلن, یہ دیکھیں ایک مدت کے لیے, لی نے آ کے اجلن کو اجلن کر دیا. جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ اجلن یہ مجرور حالت میں ہے, اور ہم کو اب اس کا ترجمہ بہت کلیئر ہو گیا کہ ہمیں اس کو کرنا ہے ایک مدت کے لیے. یہ ایک جو ہے یہ تنوین کی وجہ سے. چلیں یہاں پہ دیکھیں لکلی, یہ کلو تھا اور یہ ہو گیا لکلی. تو اس جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ زیر کی حالت میں ہے, اس کے آگے آنے والا اسم آپ ترجمہ کریں کے لیے. لی لام جارہ, لام جارہ جب معرف باللام یعنی اس کے آگے آنے والا اسم ال سے شروع ہو رہا ہو, یاد رکھیں اسی کو کہتے ہیں معرف باللام. لام جارہ جب معرف باللام والے اسم سے پہلے آتا ہے تو اسم کا حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے. آج آپ نے ایک اور دیکھا, ہم نے آپ کو دو بتائے تھے, کون کون سے؟ اسمو اور ابنو کا اسم, وہ حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا. اب ایک اور آپ ایڈ کیجئے اپنی انفارمیشن میں کہ لی کے بعد اگر آگے آنے والا اسم ال سے شروع ہوتا ہے تو یہ حمزہ بھی لکھنے میں نہیں آتا, اسی لیے للہ میں آپ نہیں لکھتے. اور بھی ہیں ایگزامپل, دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ لے کے آئے. لی اور اس کے بعد دیکھیں الولدو ہے, تو لی جو ہے لی اپنے جب ایڈ ہوگا تو یہ الولدو کا حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا للولدی. تو ایک یہ انفارمیشن بھی میں 1 منٹ کا ٹائم دیتی ہوں, آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریے, اسٹار پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو لکھ لیجیے, حالانکہ یہاں پہ تو آپ کو ملے گا پی ڈی ایف سے, آپ بعد میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پین ڈاؤن پلیز نیچے رکھ دیں پین, یہاں پہ آپ کو ملے گا, آپ بعد میں اپنی نوٹ بک میں یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا, اور سورہ فاتحہ پڑھ کے وہاں پہ للہ آئے گا تو آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے ہم یہاں لے کے آئے ہوں. جی ہاں لے کے آئے.
इसी तरह ली प्लस अल मुत्तकून, और ये हमजतुल वस्ल ड्रॉप हो गया, लिल मुत्तकीन, ये आपको सूरह बकरा के पहले ही पेज पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखें वकुलिल हम्दुलिल्लाहि, अल्लाह लफ्ज से पहले ली आया तो इसका हमजतुल वसल ड्रॉप हो गया, और देखिए इस तरह से हम लिखते हैं लिल्लाही। ये सब पहले जब हम पढ़ते थे तो हम ये सोचते थे कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया, और जब ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो एक खुशी होती है कि अच्छा क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जब ला में जा रहा यानी ली के बाद अगर मुअर्रफ बिल्लाम यानी लफ्ज अल से शुरू हो रहा हो तो उसका हमजतुल वसल लिखने में भी नहीं आता और पढ़ने में भी नहीं आती। देखिए ये था ली और अल मुकद्दिबीन। अब ये मैं लेना भूल जा रही हूँ लड़कियों को, एक मिनट। आमना के बाद महर थी, मुझे याद है जी। महर आप आ जाइए, मैं एक बार खोल लूँ तो मैं ग्रुप नंबर भी साथ में बोल सकती हूँ। महर आप आइए प्लीज। यस मैम। जी महर, ये बताएं कि लिल मुकज़्ज़िबीन ली से पहले क्या था? मैम ली के ये अल मुकज़्ज़िबूना था, ला में जारा आ गया तो हमज़तुल वसल ड्रॉप हो गया, और ये जर की हालत में आया अल मुकज़्ज़िबीना लिल मुकज़्ज़िबीन। जी हाँ, लिल मुकज़्ज़िबीना, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सारा ही बता दिया। मैंने तो एक छोटा सा सवाल किया था लेकिन आपने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया, तो जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा बताया और बिल्कुल सही बताया, जिससे पता चल रहा है कि आपको बहुत सही समझ में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह महर। अगला भी आप ही करेंगी। चलें, ये है हमारे पास वर्ड लिल मुत्तकीन, जिसको कि अगर हम ओपन करें तो ये बनता है ली प्लस अल, क्या बनता है बोले, हमने छोड़ दिया ली प्लस अल। महर बोले प्लीज। मुत्तक़ूना। वेरी गुड माशाल्लाह। ये ऊना था, क्यों ऊना था? क्योंकि किसी भी इस्म की बाय डिफॉल्ट यानी अब नेचुरल हालत जो होती है उसकी वो ऊना की होती है, यानी रफा की हालत होती है। ली ने इसको क्या किया महर? ली इसको किस हालत में लेके गया? जर की हालत में ले गया। जी हाँ, तो आप हमको जर की, ये रफा नसब जर की तीनों साउंड बता देंगी? यस मैम। ऊना ईना ईना। वेरी गुड। तो लास्ट कॉलम में ईना था ना, वो जर की आवाज थी, तो इसने इसको क्या कर दिया? अल मुत्तकीना। जी हाँ, क्या कर दिया? अल मुत्तकीना। अब इसका हमजा कहाँ चला गया अल मुत्तकीना का? मैम ली इससे पहले मुअर्रफ बिल्लाम से पहले ली आने की वजह से हमजतुल वसल ड्रॉप हो गया। ठीक है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। उम्मीद है कि सबकी समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह। महर के बाद जिसका नाम है अनीस है, ग्रुप 4 की, उसके बाद है सायरा। आज माशाल्लाह सब लोग बहुत क्विक माइक ऑन कर रहे हैं। ये लिस्ट हमारी पिछले वीक की है, कुछ लोग परेशान होंगे कि मेरा नाम नहीं है, ये पिछले वीक की कंटिन्यूएशन है और इस वीक हम पूरा ही करने की कोशिश करेंगे कि हो जाए। ये मिन यहाँ क्यों है? अच्छा, हम क्या बता रहे थे आपको कि हमें मिन का मीनिंग भी से है और अन का मीनिंग भी से है। तो देखिए, एक होता है किसी जगह, मस्जिद से, जब जगह से चीज आ रही है, मस्जिद से, घर से, यहाँ से, वहां से, यानी उसकी बात हो रही है, मकान की बात हो रही है, मतलब कहने का मतलब जगह की बात हो रही है, ऐसी जगह पे से आएगा, मिन आएगा, सॉरी, ऐसी जगह पे मिन आएगा। उर्दू में तो से दोनों ही वजह से आता है, ठीक है। और अन आता है, जैसे हम कहें कि हमने टीचर से सुना, ठीक है, या हमने इनसे सुना, अन अबी हुरैरा, उसमें भी हम उर्दू में से बोलते हैं ना, किसने, आपने किससे सुना? हमने उससे सुना, ऐसे हम बोलते हैं। ऐसी जगह पे से आता है, इसलिए अहादीस में आपको अन दिखेगा। ये एक क्लियर करने की वो है कि अन, वैसे अन का मीनिंग एक और भी आता है जो कि अबाउट भी है। तो बस मिन जगह से और
जगह से, चीज से, और अन हमने अगर किसी से सुनी हुई बात हम आगे नरेट कर रहे हैं तो हमने उससे सुना, ऐसी जगह पे अन आता है। इसके साथ ही हमारा ये वाला खत्म हुआ। चले इंशाल्लाह ताला क्लास खत्म करते हैं। अगर सवाल होगा तो आप मुझे पर्सनल करें और मैं आंसर उसका ग्रुप में ही करूंगी। अगर किसी का भी कोई सवाल आएगा तो उनका वो सवाल और हमारा जवाब ग्रुप में आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।